ازلی ابدی جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی، آپ کی بھی سلامتی۔ اور خداوند خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے سبت کے لیے اور عبادت کے لیے کہ خداوند نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں اور عبادت کے اندر شامل ہو سکیں۔ تو موسم کی خرابی تھی اور موسم کی خرابی کے باوجود پھر لائٹ کا مسئلہ آیا، تو میں خداوند خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ یہ تمام تر باتیں ہونے کے باوجود ہمارے رستے میں رکاوٹ نہیں ہوئی۔ ہاللویا ہاللویا۔ تو خداوند خدا کے کلام سے آج کے سبت کے دن کے اندر ہم اپنی اصلاح کے لیے، بہتری بھلائی کے لیے کلام اقدس میں سے سیکھیں گے خدا کی راہ کے بارے میں۔ آج جو ہم خدا کے کلام سے سیکھنے والے ہیں اس میں ہم سیکھیں گے خدا کی راہ کے بارے میں، اور اس کے لیے نکالیں گے 119 زبور اور اس کی 35 آیت۔ ایک 119 زبور اس کی 35 آیت کو کلام اقدس میں سے پڑھتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ ایک بار سبھی میرے پیچھے اس آیت کو پڑھیں گے، مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا، اپنے فرمان کی راہ پر چلا، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے، میری خوشی ہے۔ آمین۔ کلام اقدس کے پڑھے سنے سمجھے کھولے جانے پر خدا کی برکت۔ خدا کا شکر ہے۔ آمین۔ اب 119 زبور کے اندر خدا کا بندہ جس بات میں اپنی خوشی کو ظاہر کر رہا ہے اور خدا سے اس بات کی دعا کر رہا ہے کہ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا، جو حکم تو نے بیان کیے ہیں، جیسا تو نے اپنے کلام اقدس کے اندر فرمایا ہے، مجھے ان تمام احکامات پر، مجھے تمام ان حکموں پر، مجھے ان تمام اصولوں پر جو تو اپنے کلام اقدس میں میرے لیے رکھتا ہے، ان پر مجھے چلا، ان پر مجھے چلنے کی قوت عطا کر، ان پر چلنے کے لیے مجھے زور عطا کر، تاکہ میں ہمیشہ تیرے احکامات پر، تیری باتوں پر، تیرے کلام کی باتوں پر چلتا رہوں، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ میری خوشی ہے۔ خدا کی راہ پر چلنے کے لیے، خدا کے رستے پر چلتے رہنے کے لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اس کے اندر میری خوشی ہے، اور اس پر عمل پیرا ہوتے رہنے پر میری خوشی ہے۔ تو خدا کی جو راہ ہے اس کے اندر یا اس راستے پر چلنے کے لیے بہت ساری دشواریاں بھی آتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ کلام اقدس کے اندر یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ جو رستہ ہے یہ تانگ رستہ ہے، اور اس پر چلنے کے لیے جو چلنے والے ہیں وہ تھوڑے ہیں، لیکن جو راستہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے وہ کھلا اور کشادہ ہے، اور اس پر چلنے والے بھی بے شمار ہیں۔ لیکن جو خدا کی راہ ہے اس پر چلنے کے لیے مشکلیں دشواریاں تو ہیں، اس پر چلنے کے لیے مشکلات کے انبار تو ہوں گے، لیکن کلام اقدس یہ فرماتا ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے ان پر چلنے کے لیے مجھے زور دے، کیونکہ ان پر چلنے کے لیے مجھے خوشی ہے۔ رستہ مشکل تو ہے، رستہ مشکل تو ہے، دشواریاں تو ہیں، مشکلات تو ہیں، لیکن پھر بھی میں ان مشکلات کے باوجود خوشی سے ان پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔
मैं बड़ी खुशी के साथ इस रास्ते पर चलना चाहता हूँ, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है ये रास्ता सुकड़ा हुआ है, ये रास्ता तंग है और इस पर चलने के लिए बहुत लोग नहीं हैं, बिल्कुल थोड़े से लोग हैं। लेकिन मैं अपनी दिल की खुशी के साथ इस पर चलना चाहता हूँ। मैं मुश्किलों को भी बर्दाश्त करना चाहता हूँ, मैं तकलीफ़ों को भी बर्दाश्त करना चाहता हूँ। हालेलुया। हालांकि उसको सारी बात का पता है, वो जानता है कि ये रास्ता मुश्किल है, तंग है, लेकिन वो कहता है इस पर चलने के लिए मेरे अंदर खुशी है, मैं खुशी से ऐसे रास्तों पर चलना चाहता हूँ। तो कलाम अक़दस में मेरे चीज़ों हम देखते हैं, जैसे हम गीत में गा रहे थे कि कुलज़म भी रास्ते से हट जाएगा। कुलज़म का मतलब यह है कि वो रुकावट आ गई है खुदा के लोगों के रास्ते के अंदर, वो जो बियाबानी सफ़र की तरफ बढ़ रहे हैं वो रुकावट आ गई उनके रास्ते पर। तो खुदा जो है वो अपने लोगों के रास्तों से रुकावटों को भी दूर करने की कुव्वत रखता है। रुकावट आ भी जाती है, मुश्किल आ भी जाती है, तो खुदा उसको दूर कर देता है। आमीन। तो लिखा है कि कलाम अक़दस के अंदर जब कुलज़म आगे, मूसा ने देखा कि आगे कुलज़म का दरिया और पीछे फ़िरौनी फ़ौज आ गई है, तो खुदावन से हुजूर से उसने ताकत मांगी है, कुव्वत मांगी है, और खुदा ने रास्ता दिखाया कि तू अपने असा को इस पर मार, तो समुंदर के अंदर से ये रास्ता बन गया। खुदा की जो राह है, खुदा का जो रास्ता है, वो हम जब उस पर चल पड़ते हैं, चलना शुरू में तो मुश्किल लगता है, चलने के लिए रास्ता तो मुश्किल नज़र आता है, चलने से पहले तो रास्ता दुश्वार नज़र आता है, चलने से पहले तो बड़ी मुश्किलात आती हैं और चलते हुए भी बड़ी मुश्किलात आती हैं। लेकिन जब हम चल पड़ते हैं तो वो रास्ता, वो सफ़र, वो जितना भी प्रोसेस होता है उसके अंदर हम अकेले नहीं रहते, यहोवा खुदा हमारे साथ आ जाता है। और लिखा है कि उस रास्ते के अंदर से वहाँ पर उस समंदर के अंदर से खुदा ने रास्ता बना दिया और इस्राएली कौम सारी की सारी उस रास्ते के अंदर से गुजर कर दरिया को पार कर गई। तो मुश्किलें, दुश्वारियाँ आती हैं और आएंगी भी, ये मत सोचें कि हम चल रहे हैं और मुश्किलें दुश्वारियाँ नहीं हैं। तो मेरे चीज़ों, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जब हम दौड़ के अंदर दौड़ते हैं तो एक दौड़ ऐसी भी है जिसके आगे जो हैं वो जंप लगे होते हैं, वो जंप उछल कर फलांग कर उनको जाना पड़ता है। एक सीधी दौड़ है जो दुनियादार हर एक दौड़ रहा है, हर एक इंसान उस दौड़ पर दौड़ रहा है, उस रास्ते पर चल रहा है, वो सीधी दौड़ है। लेकिन जो ईमानदार और रास्तबाज की दौड़ है वो ऐसी मुश्किलात से बड़ी हुई है, उसके आगे वो स्पीड ब्रेकर आते हैं, उसके आगे वो जंप खड़े किए जाते हैं, और लेकिन जो उस स्पीड ब्रेकर को, उस जंप को दौड़ते हुए फलांगता जाता है। एक दौड़ ऐसी मैंने स्पोर्ट्स के अंदर देखी है, वो 10 फुट के फासले पर एक जंप आता है, फिर 10 फुट के फासले पर एक जंप आता है, और उस दौड़ने वाले ने, उस स्पोर्ट्समैन ने उस सारी दौड़ को ऐसे ही पूरा करना होता है। कुछ तो रास्ते के अंदर गिर जाते हैं, कुछ उसको उछल कर फलांगते हुए टकरा कर उससे गिर जाते हैं, और कुछ रास्ते के अंदर दौड़ते दौड़ते थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन जो दौड़ता रहता है, फलांगता रहता है, उन दुश्वारियों को, उन रुकावटों को, उन स्पीड ब्रेकरों को फलांग कर गुजरता जाता है, और आखिर क्या होता है कि आखिरकार जब वो दौड़ पूरी हो जाती है तो आखिर के अंदर एक एंड के ऊपर एक फीता लगा हुआ होता है, और उस फीते को वो तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है, और लोग तालियां बजाना शुरू हो जाते हैं कि इसने ये दौड़ फतह कर ली है, ये रुकावटों की दौड़ इसने जीत ली है। तो जो ईमानदारी की राह है, जो रास्तबाज की राह है, वो भी ऐसी है। स्पीड ब्रेकर, रुकावटें बहुत सारी आती रहेंगी, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल आपके रास्ते में आते रहेंगे, और लेकिन खुदा का बंदा बयान करता है, मुझे इससे नहायत शादमानी हुई जब मैंने इस आयत पर निगाह की, तो खुदा का बंदा कहता है मुझे अपने फरमान की राह पर चला, क्योंकि इसी के अंदर मेरी, इसी के अंदर मेरी शादमानी है, इसी के अंदर मैं खुश होता हूं, क्योंकि तेरी राह पर चलना मुझे पसंद है। तेरी राह पर चलने के लिए मुझे खुशी है। कलाम अक़दस के अंदर इस्तिश्ना की किताब के 8वें बाब को निकालते हैं।
8वें बाब की 3 आयत से लेकर 7 आयत तक कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं। जी बड़े। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और उसने तुझको आजिज़ किया भी, और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। इन 40 वर्षों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पाँव सूजे, और तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तंबिया करता है, वैसे ही खुदावंद तेरा खुदा तुझको तंबिया करता है। सो तू खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में ले जाता है। वो पानी की नदियों और ऐसे चश्मों और सोतों का मालिक है जो वादियों और पहाड़ों से फूट कर निकलते हैं। आमीन आमीन। कलाम अक़दस के अंदर मूसा के वसीला से हम इस बात को हासिल करते हैं कि इस जगह पर लिखा हुआ है, और उसने तुझको आजिज़ भी किया और तुझको भूखा होने दिया, फिर आसमान से तेरे लिए मन भी उतारा, और जिसे तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर एक बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। और 40 वर्षों के अंदर जब बियाबानी को सफ़र के अंदर इस्राएली कौम गई है, तो कलाम अक़दस फरमाता है कि ना तो उनको जूतियों की हाजत हुई है, और ना उनके कपड़े ख़राब हुए हैं, और ना उनको खाने की कमी आई है, और ना उनको पीने की कमी आई है। तो कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, और तूने अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तनबीह करता है, वैसे ही खुदावंद तेरा खुदा भी तुझको तनबीह करता है। इसलिए सो तू खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना, खुदा के रस्तों पर चलने के लिए, खुदा के रस्तों पर चलाने के लिए जब हम मुश्किलों को फेस करना शुरू कर देते हैं तो उसके अंदर खुदा खुद हो शामिल हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर इस्राएली कौम के लिए ना तो उनके जूते खराब हुए हैं, और ना उनके पाँव खराब हुए, ना उनके पाँव के अंदर सूजन आई है, ना उनके पाँव के अंदर खराबी आई है, ना जख्म आए हैं, और ना उनके कपड़े खराब हुए हैं। उठा ले बेटे, उठा ले, एक नहीं अब स्टॉप। और जब हम सारी मुश्किलों को फेस कर लेते हैं तो सारे मुश्किलों के बाद खुदा रास्ते निकालता है, और फिर जब ये सारी मुश्किलें हो जाती हैं खुदावंद रास्ते निकालता है। तो 7वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में लिए जाता है। जब सारे मुश्किलों को फेस कर लिया है, कौम बनी इसराइल ये सफ़र मुश्किल समझ रही है, और इस सफ़र को बड़ा दुश्वार समझ रही है, बड़ी मुश्किलात के अंदर समझ रही है कि ये बड़ा मुश्किल सफ़र है, और मूसा के साथ बड़बड़ाती है कि तू हमें मारने के लिए ले आया, तू हमें बियाबान के अंदर ले आया, जंगलों के अंदर ले आया, यहाँ पर तो हम मर जाएंगे, यहाँ पर तो हम मिट जाएंगे, हमारा कोई हाल नहीं रहेगा, ना तो यहाँ पर खाने के लिए कोई चीज़ है, ना रहने के लिए कोई चीज़ है, और ना कोई यहाँ पर पहनने के लिए चीज़ें हैं। लेकिन कलाम अक़दस इस बात का गवाह है कि 40 बरस तक ना उनकी जूतियों का कोई मसला बना है, और जूतियाँ टूटने के बाद ना टूटी, और उनके ना पाँव खराब हुए हैं, ना पाँव जख्मी हुए हैं, ना पाँव के अंदर स्वेलिंग आई है, और ना ही उनके कपड़े खराब हुए हैं। वो तो इस रास्ते को मुश्किल समझ रहे हैं, वो तो इस रास्ते को बड़ा दुश्वार मान रहे थे, और कह रहे थे कि मूसा तू हमें ले तो आया, लेकिन यहाँ पर हम मर जाएंगे। तो लिखा है कि खुदा उनको खाना मुहैया करता रहा है।
जब सर्दी का सीजन आता था तो आग के सतून के अंदर होकर उनको हीट देता रहा है, उनको सर्दी नहीं लगती थी, उनको पाला भी नहीं लगता था। जब गर्मी का मौसम आता था तो आसमान पर सूरज के आगे खुदा बादल बनकर आ जाता था ताकि उनको साया मिलता रहे, छांव मिलती रहे और वो धूप से महफूज रहें। तो खुदावंद खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब वो मुश्किल समझ रहे थे, इस रास्ते को दुश्वार तो समझ रहे थे, लेकिन उस रास्ते को आसान किया यहोवा खुदा ने, उनके साथ उनकी सारी मुश्किलों को दूर किया। जो जो बातें उनकी ज़रूरत की थी, जो चीज़ें उनके खाने पीने के लिए थी, जिन चीज़ों की वो ज़रूरत महसूस कर रहे थे कि हमें यहाँ इस बियाबान के अंदर नहीं मिलेंगी, खुदावंद खुदा ने उनको सब मुहैया किया। तो फिर लिखा है, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में लिए जाता है, वो पानी की नदियों और ऐसे चश्मों और सोतों का मुल्क है जो वादियों और पहाड़ों से फूट कर निकलते हैं, और वो ऐसा मुल्क है जहाँ गेहूं और जौ और अंगूर और अंजीर के दरख्त और अनार होते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहाँ रोगन, दार, जैतून और शहद भी है। कलाम अक़दस ये फरमाता है, हम दुनिया के अंदर तो मुश्किलात उठा रहे हैं, जैसे खुदा ने इसराइलियों के साथ वादा किया कि मैं जब तुम्हें वादा करदा ज़मीन पर ले जाऊंगा, उस मुल्क के अंदर ले जाऊंगा, तो वहाँ पर कौन कौन सी नेमतें हैं? वहाँ पर पानियों की नदियाँ हैं, वहाँ पर चश्मे हैं, और वहाँ पर सोतों का मुल्क है, वादियाँ पहाड़ों से फूट कर निकलती हैं, और ऐसा मुल्क है जहाँ गेहूं, जो, अनार, अंगूर और फलों से उस मुल्क का सारा हिस्सा भरा हुआ है। वहाँ पर नेमतें हैं, वहाँ पर बरकतें हैं, वहाँ पर शहद की कसरत है। तो जब हम दुनिया के अंदर मुश्किलों को बर्दाश्त करने के बाद हमेशा की बादशाही के मुल्क में जाएंगे, तो कलाम अक़दस फरमाता है कि वहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ, वहाँ पर सोने चांदी की सड़कें हैं, और वहाँ पर हमेशा की बादशाही है, और वहाँ पर हम हमेशा बादशाह के साथ रहेंगे। यहाँ पर तो हम दुनिया के अंदर मुश्किलात के अंदर ज़िंदगी गुजारे हैं, खुदा के रास्ते पर चलते हुए मुश्किलात हमारे आगे आती हैं, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े भी आ जाते हैं, फसाद आ जाते हैं, लेकिन खुदा की हज़ूरी के अंदर हम जब मुसलसल इस रास्ते पर चलते जा रहे हैं, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि वो मुल्क हमें नसीब होगा, वो मुल्क हमारे लिए रखा हुआ है जिसके अंदर नेमतें फरावानी से भरी हुई हैं, जिसके अंदर बरकतें और फल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस मुल्क के अंदर कसरत के साथ मौजूद हैं। तो मेरे चीज़ों, मत्ती की अंजील के 11वें बाब की 3 आयत को पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यहाँ पर जब यूहन्ना के पास शागिर्द गए हैं तो यूहन्ना से मालूम करते हैं, जी निकालें जी, तो यूहन्ना ने लोग भेजे हैं, यूहन्ना ने भाइयों को भेजा है ताकि यीशु मसीह के पास जाकर वो दरियाफ्त करें। और यीशु मसीह के पास जब वो गए हैं तो यूहन्ना ने दरियाफ्त करने के लिए भेजा है, क्योंकि यूहन्ना को पता चल गया कि जिसकी राह मैं तैयार करने के लिए आया था, जिसका रास्ता मैं तैयार करने के लिए आया था, वो दुनिया में आ चुका है। और उसने इस बात को कन्फर्म करने के लिए भाइयों को यीशु मसीह के पास भेजा है। तो यूहन्ना जब बपतिस्मा देने वाला जब आया तो उसने आते ही कहा कि खुदावंद की राह तैयार करो। हम जिसको सीख रहे हैं वो आज का टॉपिक ये है, खुदा की राह। वो आते ही कहता है कि खुदावंद की राह तैयार करो, जो नाम हमवार है वो हमवार किया जाए, जो ऊंचा है उसे बराबर किया जाए, और जो गड़ा है उसको भर दिया जाए। खुदावंद की राह तैयार करो क्योंकि उसके दिन नज़दीक आ पहुँचे हैं। तो उसने कन्फर्मेशन के लिए भेजा है कि जाओ यीशु मसीह से पूछो कि जो आने वाला था तू ही है या हम किसी और की राह देखें। तो यीशु मसीह जिनको यूहन्ना ने भेजा है उनको जवाब देते हैं कि जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, कोढ़ी शिफा पा रहे हैं, और बीमार अच्छे किए जा रहे हैं, और बदरू गिरफ्तार आज़ाद किए जा रहे हैं। जब तुम ये जवाब उसको देकर दोगे तो वो जान जाएगा कि आने वाला मैं ही हूँ, जिसकी राह तुम देख रहे हो। अब किसी की राह नहीं देखना, मैं आ चुका हूँ। और जाकर यूहन्ना ने जब पाया तो उसने कहा, हाँ अब आने वाला तू ही है, तू आ चुका है। तो यीशु मसीह ने कहा अब किसी की राह देखने की जरूरत नहीं है।
اب جس راہ کو یوحنا نے تیار کیا تھا آنے والے کے لیے وہ آ چکا تھا، وہ موجود ہو چکا تھا۔ تو کلام اقدس کے اندر متی کی انجیل کے 11 باب کی 3 آیت کو ہم نے پڑھا کہ اس نے پوچھا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی دوسرے کی راہ دیکھیں؟ تو ہمیں جس کی راہوں کا، جس کے رستوں کا انتظار تھا وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح آ چکا ہے۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزو، یعقوب کے خط کو پڑھتے ہیں۔ دے دو۔ یعقوب کے خط کو پڑھتے ہیں 5ویں باب کی 19 اور 20 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اے میرے بھائیو، اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے۔ لکھا ہوا ہے، اے میرے بھائیو، اگر تم میں سے کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی کیا کرے کہ اس کو پھیر لائے۔ جب اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی خدا کے رستے سے بھٹک جائے، خدا کے رستے سے گر جائے، خدا کے رستے سے، خدا کی راہ سے علیحدہ ہو جائے، تو تم میں سے کوئی ایسا اٹھے جو اس کو پھیر کر واپس لے آئے۔ اور جب واپس لے آئے گا تو 20ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ جب کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے، کوئی بہن، کوئی بھائی ہماری زندگی سے، ہمارے گھرانوں سے، خدا کی راہ سے پھر جاتا ہے، خدا کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے اور پھر پرانی زندگی کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس کو خدا کے رستے پر لانے کے لیے تم کیا کرو؟ تم میں سے کوئی بھی جا کر اس کو پھیر کر واپس لے آئے۔ اور کیا کرے کہ جب وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو موت کے رستے سے بچا لیتا ہے، اس کو گناہوں اور موت کے رستے سے بچا کر واپس لے آتا ہے۔ تو ہم نے اس کو موت کے رستے سے واپس لا کر خدا کے رستے پر چھوڑنا ہے، خدا کے رستے پر لانا ہے۔ تو خدا کا بندہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا کہ اس کو چھوڑ دینا ہے، ایسا نہیں کرنا کہ اس کو اکیلا چھوڑ دینا ہے، ہم نے جا کر کوشش کر کے اس کو خدا کے رستے پر واپس لانا ہے۔ تو میرے عزیزو، عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے 10ویں باب کی 19ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ کیسی دلیری ہے، کیسی خوشی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس پاک مکان میں داخل ہونے والے ہیں جو اس کے خون کے سبب سے زندہ اور نئی راہ ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ نئی راہ کیسے نصیب ہوئی ہے؟ نئی راہ، نیا رستہ کیسے ملا ہے؟ جب ہم نئے ہو گئے ہیں، جب ہم نے اپنی پرانی زندگی کو بدل کر نیا رستہ بنا لیا ہے، نیا رستہ اختیار کر لیا ہے، یسوع مسیح کا رستہ اختیار کر لیا ہے، تو خدا کا بندہ یہاں پر بیان کرتا ہے، پولس رسول کہتا ہے، بس ہے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع مسیح کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری مل گئی ہے۔ اب ہمیں کنفرمیشن ہو گئی ہے، ہمیں دلیری مل چکی ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے اس رستے پر چلتے چلتے، اس راہ پر چلتے چلتے ہمیشہ کی بادشاہی میں جائیں گے۔ اس رستے پر چلتے چلتے، اس راہ پر چلتے چلتے ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس میں نئے ہو جانے کی وجہ سے، اس نئے رستے پر چلنے کی وجہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور جائیں گے۔ یہ دلیری ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو آخری بات، ایک دو آیتیں ہیں، میں اس کو کرتے کے بعد کلام اقدس کو وائنڈ اپ کروں گا۔ یہاں پر غلطیوں کے نام پولس رسول کے خط میں لکھا ہوا ہے، اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے گئے ہو۔ اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ کس راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے؟ کس رستے سے ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے؟ محبت کی راہ سے۔ اور کہتا ہے کہ اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے گئے ہو، آزاد رہنے کے لیے بلائے گئے ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آزادی جو ہے وہ جسمانی باتوں کا موقع بن جائے۔
ये ना सोच लो कि हम आज़ाद हो गए हैं, यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कर लिया तो हम जो मर्जी करते फिर जिस्मानी बातों का शिकार हो जाएं, जिस्मानी जहन का शिकार हो जाएं और जिस्म के कामों को पूरा करना शुरू कर दें। खुदा का बंदा कहता है इस आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप जिस्म के कामों में पड़ जाएं, जिस्मानी बातों को पूरा करना शुरू हो जाएं, बल्कि ये आज़ादी इसलिए है कि हम इस मोहब्बत में कायम रहते हुए एक दूसरे की खिदमत करते रहें, ना कि हम जिस्मानी बातों का शिकार हो जाएं। तो मेरी चीज़ों, खुदा के रस्ते के ताल्लुक से पहले ज़बूर के अंदर भी लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो शरीरों की राह में नहीं चलता, राह पर नहीं चलता और खताकारों के रास्ते पर खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं जाता। ज़बूर नवीस भी इस बारे में आगाह कर रहा है कि वो जिंदगी, वो बहन, वो भाई, वो मसीही मुबारक है जो शरीरों के राह पर नहीं चलता, वो शरीरों के रास्ते में शामिल नहीं होता, खताकारों के रास्ते में जाकर दाखिल नहीं होता, बल्कि अपने आप को उनके रास्ते से बचाकर खुदा के रास्ते पर कायम रखता है। वो मुबारक है। तो हम पहले बाब की 6ठी आयत को पढ़ते हैं, पहले ज़बूर की 6ठी आयत को पढ़ते हैं, वहां पर भी ऐसी बात लिखी है। लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। साधकों की राह के बारे में खुदा को पता है, उसकी नज़र उन पर लगी हुई है, क्योंकि वो अपने साधकों को तन्हा नहीं छोड़ता, अपने साधकों को अकेला नहीं छोड़ता, इसलिए उसकी नज़रें उस पर लगी होती हैं और खुदा साधकों की राह को देखता रहता है। और पहली आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि जो आदमी शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता वो मुबारक है। और खुदावंद की नज़र किन पर है? क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। जो इस रास्ते से दूर हैं, जो शैतान के रास्ते पर हैं, जो अबलीस के रास्ते पर चल रहे हैं, वो नाबूद हो जाएंगे, वो फना हो जाएंगे, वो हलाक हो जाएंगे, उनको हलाक कर दिया जाएगा। तो मेरी चीज़ों, हमें खुदा की राह इख्तियार करनी है, ना कि अबलीस की, बल्कि खुदावंद के रास्ते पर चलते चलते उस राज के वसीला से हमने उस रास्ते पर चलते चलते हमेशा की बादशाही के अंदर दाखिल होना है। 5वें बाब की 8वीं आयत को निकालते हैं ज़बूर की। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐ खुदावंद मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे अपनी सदाकत में चला, मेरे आगे आगे अपनी राह को साफ कर दे। मेरे दुश्मन तो हैं, हमारा दुश्मन अबलीस है, हमारा जो मुखालिफ है वो अबलीस है। तो खुदा का बंदा दुआ करता है खुदा की हुजूरी में कि ऐ खुदावंद मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे सदाकत के रास्ते पर चला। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अबलीस के वसीला से भटक जाऊं, मैं राह से फिर जाऊं, रास्ते को छोड़कर अबलीस के रास्ते पर चलना शुरू कर दूं। इसलिए क्या कर तू मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे अपनी सदाकत के रास्ते पर चला, मेरे आगे आगे अपने राह को साफ कर दे। उन सारी बातों को, उन सारे अबलीस के कामों को, उन सारे अबलीस के ख्वाहिशों को, बंधनों को, बुरी बातों को मेरे रास्ते से साफ कर दे, ताकि मैं तेरे राह पर कायम रहूं, तेरे रास्ते पर कायम रहूं, ना कि अबलीस के रास्ते पर। 16वें बाब की 11वीं आयत, आखिरी आयत पढ़कर हम 16वें बाब की 11वीं आयत यहां पर मिलता है, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, क्योंकि तेरे बेटे ने इसका वादा फरमाया हुआ है। तेरा बेटा फरमाता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। खुदावंद का रास्ता
क्या है? खुदा का बेटा फरमाता है जिस रास्ते पर तूने चलना है वो रास्ता भी मैं हूँ, वो राह भी मैं हूँ, और राह हक जिंदगी मैं हूँ। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है 16वें बाब में? तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। खुदा का बेटा कहता है मैं तुझे हमेशा की जिंदगी दूंगा। और दाऊद कहता है कि अपने वादे को पूरा कर, तो अपने बेटे के वसीला से मुझे नई जिंदगी अता कर। तो ये कैसे होता है? खुदा के रास्ते को, खुदा की राह को इख्तियार करने के बाद, खुदा के रास्ते पर चलने के बाद। तो मैं आपको बताता हूँ पहली बात जो हमने किया कि खुदा के रास्ते पर चलते चलते बहुत सारी दुश्वारियाँ, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी रुकावटें, स्पीड ब्रेकर आते रहेंगे। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप रास्तबाज हैं, तो इन सारी मुश्किलों को, दुश्वारियों को आपने यीशु मसीह की कुव्वत से, यीशु मसीह की दलेरी से जो उसने हमें दी हुई है कि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनेंगे, उस दलेरी में रहते हुए इनको फलांगता जाना है, इनको ऊपर से फलांग कर वो गुजरते जाना है। और सारी मुश्किलों को फलांगते हुए गुजरने के बाद आखिर को हमें दौड़ में कामयाब होने के बाद इनाम मिलेगा, और वो इनाम खुदा के बेटे की हमेशा की ज़िंदगी है। आमीन। तो दौड़ते हैं। पौलुस रसूल कहता है कि मैं उस निशान की तरफ दौड़े जाता हूँ जिसकी तरफ मुझे पहुँचना है, जिस तक मुझे पहुँचना है। मेरी मंजिल वो है जो निशान मैंने रखा हुआ है। मेरी मंजिल खुदा का बेटा यीशु मसीह है, वो निशान मुझे दिखाई दे रहा है। मैं उस निशान की तरफ दौड़े जाता हूँ। रास्ते में मुश्किलात आ रही हैं, मैं उसको फलांगते जा रहा हूँ। रास्ते में जो सवारियाँ आती रहती हैं मैं उनको फलांगता जा रहा हूँ। वो कहता है मेरे रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात आई हैं, दरियाई और समुद्री तूफान आ गए हैं, मैं डूबते डूबते बच गया हूँ, मुझे खुदा ने बचा लिया है। जंगली जानवरों से बचा लिया है, सांप के डसने से बचा लिया है, मौत की वादियों से बचा लिया है, और जेल खानों से बचा लिया है। और मैं अब भी इन मुश्किलों के बावजूद, इन मुश्किलों से निकलते हुए भी अब भी उसी निशान को देख रहा हूँ। मैंने उस निशान को जाकर हासिल किया। आमीन। तो दौड़ने के बाद इनाम मिलेगा, वो खुदा के बेटे की हमेशा की ज़िंदगी है। इस रास्ते पर चलने का इनाम ही, खुदा के राह पर चलने का इनाम ही हमेशा की ज़िंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने सीखा है कि खुदा की राह कैसी है। आइए आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं और खुदा के रास्ते को, उस पर चलने के लिए, उसको इख्तियार करने के लिए, उसको पाक रखने के लिए, और खुदा की दलेरी और खुदा की कुव्वत मांगे खुदा के ज़रूर से। नहायत बुजुर्ग अजीम आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के सबत के लिए जिंदा खुदा, आज की फतहमंद इबादत के लिए जिंदा खुदावंद, आज की सारी इकट्ठ के लिए, ज़िंदगियों के लिए, घरानों के लिए हम तेरी बड़ी बरकतों को चाहते हैं, बड़े फजल को चाहते हैं। और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे अंदर तेरे रास्ते पर चलने के लिए दलेरी है, और इसी पर चलने में हमारी खुशी है। हम तेरे बंदा दाऊद के साथ मुत्तफिक होते हैं कि अपने अहकाम की राह पर हमें चला, और क्योंकि इसी के ऊपर चलने के लिए, इसी में चलने के ऊपर हमारी खुशी है जिंदा खुदा। तो हम शादमानी और दलेरी के अंदर हैं कि हम इस पर चलते रहें, हम इस पर चलते चलते तमाम दुश्वारियों को, रुकावटों को पार करें, और तमाम रुकावटों को फलांगते हुए दौड़ में कामयाब होकर तेरे बेटे की हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। तेरा कलाम फरमाता है कि ये जो राह है, ये जो रास्ता है वो सुकड़ा हुआ है, ये तंग रास्ता है, ये तंग दरवाज़ा है, लेकिन इसमें जितने भी दाखिल हो जाते हैं, जब वो उस दरवाजे से दाखिल होकर हमेशा की ज़िंदगी में जाते हैं, तो हमेशा की ज़िंदगी का जो जगह है वो बहुत अजीम है, वो बहुत बड़ी है। उसके अंदर नेमतें भरी हुई हैं, उसके अंदर फजीलतें भरी हुई हैं, उसके अंदर खाने पीने की वाफिर मकदार की नेमतें भरी हुई हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, सोने चांदी की सड़कें हैं, और हमेशा की ज़िंदगी के फल हैं, हमेशा की ज़िंदगी की खुराक है, गेहूँ है, जौ है, हर तरह के फल और जिंदा खुदा हमेशा की ज़िंदगी की चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम तंग रास्ते पर और तंग दरवाजे से दाखिल होने के बाद इस जिंदगी को हासिल करें। तो हम तेरे हुजूर से कुव्वत मांगते हैं, जोर मांगते हैं,
دلیری مانگتے ہیں, شادمانی مانگتے ہیں, اور تیرے بیٹے کا لہو مانگتے ہیں, اس کی خوشی مانگتے ہیں, تاکہ ہم اسی طرح تیرے رستے پر چلتے رہیں اور تمام موسمی دشواریوں کو, رکاوٹوں کو پار کرتے جائیں, اور جو بھی ہمارے رستے میں دنیا کی مشکلات آئیں, دنیا کی پریشانیاں آئیں, ہم تیرے رستے پر ثابت قدم رہیں. تیرے شکر گزار. تمام گھرانوں کے لیے برکت چاہتے ہیں. زندہ خدا ان گھرانوں کو آج کے سبت کے دن کے لیے میں تیرا بندہ ہوتے ہوئے تمام زندگیوں کو, تمام گھرانوں کو برکت اور سلامتی کی دعا دیتا ہوں. تیرا شکر, ہمیں چھونا اور بلیس کرنا, اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرتے رہنا. تیری شکر گزار. یسوع مسیح کے ابدی جلالی قدوس نام سے مانگتے ہیں, آمین.